I think this question we had already done. Yes. Yes. Now today we are going to start with this question. So please quickly write down the statement so that we can cover. I am speaking also. You can note down. Represent the given data in tabular form. That is clear. First para. In 2011, out of 4,750 workers, out of 4,750, 4750 workers in a factory, 3,900 were members of a trade union. 3,900 were members of a trade union. Full stop. The number of women employed was 1,200. Number of women employed was 1,200, of which 750 did not belong to a trade union. Of which 750 did not belong to a trade union. Full stop. Next para. In 2012, the number of union workers in 2012, the number of union workers increased to 4,580. Increased to 4,580, of which 3,290 were men. Of which 3,290 were men. Full stop. The number of non-union workers, increased to 1,200. Number of non-union workers increased to 1,200, of which 780 were men. Of which 780 were men. Full stop. Now last para. In 2013, there were 9,800 workers who belonged to a trade union. And 500 who did not belong to a trade union. 500 did not belong to a trade union. Full stop. Of all the employees in 2013, 2,300 were women. 2,300 were women, of whom only 200 did not belong to a trade union. Of whom only 200 did not belong to a trade union. Okay. Now this type of question is given. Now see, this is little more detailed question because 3 years are given, more explanation is given. Okay, no need to worry. I am telling you the rough sketch and you are requested to do it quickly. Vertically, 3 years are to be presented. Okay, table number heading that we will do later. Vertically 3 years करने हैं आपने. एक हो जाएगा 2011, then 2012 और एक 13. ठीक है. फिर 2011 के below further sub captions will be there. Male, female, total. Similarly, below this caption of 2012, उसके नीचे भी 3 columns will be there. Male, female, total. In the same manner for 2013, again male, female, total. Okay, this will be your vertical division, captions and sub caption. And horizontally, row wise, you will write category. Now which category? Union members, non-union members.
ठीक है ना, because whole of the information is related with these things only. So row wise your heading will be category या union status, that is your choice, whatever you want to write you can. Category के नीचे you will write union members, non union members, and after that total. ठीक है जी. Now please start. Firstly please do in rough work. Now calculations are there. Firstly fill all the information related to 2011. ठीक है, सारे simultaneously, don't start all the years simultaneously. Firstly complete 2011. Now let us see how to do. 2011 में कितने members हैं, how many workers are there? 4750. That means जो 2011 का total है बिल्कुल end में राइट साइड कॉर्नर आपका 2011 का, देयर यू विल राइट 4750. ठीक है, ये टोटल वर्कर्स हैं. उसमें से 3900 वर मेंबर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन. इसका मतलब टोटल वाले कॉलम में से, ठीक है ना, 4750 में से 39 यूनियन मेंबर्स हैं. तो इन फ्रंट ऑफ यूनियन मेंबर्स टोटल वाले कॉलम में यूनियन मेंबर के फ्रंट में यू विल राइट 3900. ठीक है, तो अब हाउ मेनी आर देयर नॉन यूनियन मेंबर्स? वेरी इजी. 4750 में से सब्ट्रैक्ट 3900. टोटल में से यूनियन मेंबर्स को माइनस कर दें तो यू विल बी लेफ्ट विद नॉन यूनियन मेंबर्स. ठीक है, जितना भी आया दैट आई विल शो द सोल्यूशन लेटर. पहले आप माइनस करिए 4750 में से 3900. ठीक है, इन दैट वे यू विल गेट नॉन यूनियन मेंबर्स. तो हमारा टोटल वाला कॉलम कंप्लीट हो गया इन दिस वे. अच्छा, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट लाइन. नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉयड वाज 1200. ठीक, इसका मतलब जो आपका 2011 का फीमेल वाला कॉलम है उसका टोटल कितना है? हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर? फीमेल लिख लो या विमेन लिख लो, आपकी मर्जी है. मेन विमेन लिखना है तो ठीक है, मेल फीमेल लिखना है तो भी ठीक है. तो विमेन वाले कॉलम के नीचे योर टोटल विल बी 1200. ठीक है, ऑफ विच 750 डिड नॉट बिलोंग टू ट्रेड यूनियन. मतलब जो 750 विमेन है 1200 में से, दे आर नॉट बिलोंगिंग टू एनी ट्रेड यूनियन. मतलब दे आर नॉन यूनियन मेंबर्स, राइट. सो इन फ्रंट ऑफ नॉन यूनियन मेंबर्स, उसके सामने फीमेल के नीचे वी विल राइट 750. विमेन कॉलम के नीचे नॉन यूनियन मेंबर के सामने यू विल राइट 750. तो नाउ यू सी टू वैल्यूज आर देयर विद यू. अब आप टोटल है हमारे पास, टोटल विमेन है 1200, उसमें से 750 नॉन यूनियन मेंबर्स हैं. तो हाउ मेनी विमेन विल बी देयर इन एज यूनियन मेंबर्स? माइनस कर दें 1200 माइनस 750. नाउ दिस यू डू योरसेल्फ. कितना आया, जो भी वैल्यू आई दैट यू राइट. ठीक है, नाउ सी वेरी इजी. नाउ मेल फीमेल मेन विमेन टोटल में से टू कॉलम्स कंप्लीट, दे आर देयर विद यू. अब आप क्या करो, वर्टिकली टोटल में से जो फीमेल वाले कॉलम की वैल्यूज हैं विमेन वाली वो माइनस करते जाओ. यू विल गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ मेन कॉलम. फर्स्ट हो जाएगी आपकी 3900 माइनस 450, सेकेंड हो जाएगी 850 माइनस 750, एंड थर्ड हो जाएगा 4750 में से माइनस 1200. लेट मी सी others are doing or not. Calculation please do carefully. Yes, now in the same manner please do for 2012 as well as for 13. Jasleen, please do the calculations. Don't sit idly. If you don't do practice, then what will you do in paper?
all students are requested to keep their video on. Saksham Lekhi, keep videos on bete, all of you. Only then I can see you are doing work or not. Hurry up bete, hurry up. हाँ जी सान्या भाटिया, डन बेटे, कर लिया? All the 3 years? Very good. Others are also, please be fast, then I show the solution. Hurry up, hurry up. Okay, now I am going to show the solution of this question. You can cross check your values, whether you have put the right or wrong values. Now you can see the screen. Okay. Now let us see for 2011. Please check males 3450, 100, 3550. Females 450, 750, 1200. Total 3900, 850, 4750. Right? Then for 2012 year, males ka I am going to speak. Males ki values are, vertically I am speaking, 3290, after that 780, and total 4070. Then females 1290, 420, total 1710. And then total of 2012, 4580, 1200, and 5780. And then for last year, 2013, 7700, 300, 8000. Then female column 2100, 200, and 2300. And last total है 9800, 500, and 10300. ठीक है बेटे? All values are okay? Very right. Now after this, firstly, as I said earlier also, all this calculation part should be done in rough work because mistakes can be there. तो पहले rough में करके then make it fair with proper scaling neatly and very clearly this table is to be presented. Now on the top you can write table number. अब आप चेक कर लो कौन से वाला क्वेश्चन है ये, टेबल नंबर 8 है 9 है जो भी है वो आप देख लो, ठीक है. एंड देन हेडिंग कैन बी गिवन table showing sex wise distribution of union non union. अब ये the heading which has been given in the book ना, it is very long title, we can make it short. सीधा ही आप एक short सा heading you can provide, distribution of what is there, distribution of workers in a factory. पहले इतना heading बन जाएगा, brief heading, distribution of workers in a factory. ठीक है. उसके बाद head note में bracket में आप लिख सकते हो according to their sex and union status. According to their sex and union status. ठीक है ना? We should not blindly follow the headings given in the book. There is no need. We can make use of our own mind also. Short heading we can provide, distribution of workers in a factory. Bracket में according to their sex and union status. Bracket closed. Acha, now in this question, no head note, no footnote or this, sorry, not head note, no footnote is required, no source is given, so nothing will be written in the end of the table. Okay? Chalo, now let us do another question. अब उसकी calculation थोड़ी सी ज़्यादा होगी. Let us see.
Yes, please write quickly. A total number of 1890, 1890, a total number of 1890 women were interviewed for an interview in a chemical company. Interviewed for an interview in a chemical company. Full stop. Out of total applicants, 450, 450, 450 were from textile area. 450 were from textile areas and the rest from the non-textile areas. And the rest from the non-textile areas. Full stop. Amongst the married women who belonged to textile areas, comma, 310 were experienced, 310 were experienced and 60 inexperienced, 60 inexperienced, comma, while from non-textile areas, the corresponding figures were non-textile areas में से the corresponding figures, corresponding मतलब उसी order में जिस order में पहले बात चल रही है, corresponding figures 250. Please mute yourself. Sukhjeet ma'am, please mute all the students. Corresponding figures were 250 and 320. 250 and 320. Full stop. Next para. The total number of inexperienced women was 1250, comma, of whom मतलब इनमें से, of whom 80 resided in textile area, of whom 80 resided in textile areas, full stop. Of the total number of women, 950 were unmarried, 950 were unmarried, and of these, comma, and of these मतलब in unmarried women में से, and of these, the number of experienced women in the textile, and non-textile areas was 60 and 20 respectively. The number of experienced women in the textile and non-textile areas was 60 and 20 respectively. Tabulate this data. ठीक है, अब ये थोड़ा सा लॉन्ग है क्वेश्चन. अब आप पहले रफ में ही आप ड्रॉ करो कैसे इसको प्रेजेंट करना है, बाद में इसको फेयर करिएगा. ठीक है, तो पहले वर्टिकली आपके 3 ब्रॉड कॉलम्स बनेंगे. वर्टिकली उसका एक हेडिंग होगा, एक होगा टेक्सटाइल एरिया, फिर सेकंड होगा नॉन टेक्सटाइल एरिया, और लास्ट में नाउ इन दिस क्वेश्चन एक और बनेगा हमारा कॉलम टोटल, ग्रैंड टोटल वाला टोटल. ठीक है, टेक्सटाइल एरिया, नॉन टेक्सटाइल एरिया और एक लास्ट में टोटल. उसके बाद टेक्सटाइल के नीचे फिर फर्दर 3 सब पार्ट्स विल बी देयर. कौन कौन से करनी है? मैरिड विमेन, अनमैरिड विमेन, टोटल. ठीक है, टेक्सटाइल एरिया के नीचे 3 सब कैप्शंस, 3 सब कॉलम्स विल बी देयर. मैरिड विमेन, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो क्विकली, मैरिड विमेन, अनमैरिड विमेन और टोटल. राइट, ऐसे ही फिर जो नॉन टेक्सटाइल एरिया है, फर्दर दैट इज टू बी डिवाइडेड वर्टिकली इन 3 पार्ट्स. उसके भी आगे 3 कॉलम बनेंगे, सब कॉलम बनेंगे, मैरिड विमेन, अनमैरिड विमेन, टोटल. राइट, उसके बाद जो लास्ट टोटल वाला कॉलम है उसके भी नीचे 3 कॉलम बनेंगे,
उसके भी फर्दर 3 पार्ट्स बनेंगे, मैरिड विमेन, अनमैरिड विमेन, टोटल, राइट। अच्छा, अभी उसके बाद ये बाकी चीजें तो होगी। नाउ अभी स्टिल वी हैव लेफ्ट वन थिंग कि वो एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर, अब वो जो एक्सपीरियंस है वो दैट विल बी शोन इन द रोज। तो उसका हेडिंग बनेगा क्वालिफिकेशन, ठीक है। सब स्टब हेड जो रोज का हेडिंग है वो हो जाएगा क्वालिफिकेशन। बिलो दैट यू मे राइट एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, टोटल। रोज में रोज का हेडिंग बनेगा क्वालिफिकेशन, उसके नीचे लिखना क्या है, रो में एक्सपीरियंस्ड एक रो हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट रो में इनएक्सपीरियंस्ड, और उसके बाद लास्ट रो में टोटल, ठीक है। अब आप स्टार्ट करिए, पहले फिल ऑल दोज वैल्यूज विच आर गिवन, उसके बाद फिर हियर एंड देयर लेट अस सी व्हाट कैन बी डन। अच्छा, अब सबसे पहले देखो व्हाट इज गिवन, टोटल नंबर ऑफ 1890 विमेन वर इंटरव्यूड। 1890, बिल्कुल जो लास्ट वाला कॉलम है हमारा टोटल वाला वर्टिकली, उसका भी जो एंड वाला कॉलम है टोटल, ठीक है ना। टोटल के भी आगे 3 पार्ट किए थे ना, मैरिड विमेन, अनमैरिड एंड टोटल। बिल्कुल एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, बिल्कुल कोने के ऊपर आपका जो ग्रैंड टोटल बन रहा है वहां पे यू विल राइट 1890। आफ्टर दैट उसके बाद क्या दिया, आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 450 वर फ्रॉम टेक्सटाइल एरिया, ठीक है। अब आप चेक करो, टेक्सटाइल एरिया की बात आ गई। अब आ जाओ टेक्सटाइल एरिया वाली साइड पे। टेक्सटाइल एरिया में क्या दिया हुआ है, ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 450 वर फ्रॉम टेक्सटाइल एरिया। इसका मतलब टेक्सटाइल एरिया का जो टोटल है, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट कॉर्नर वाला टोटल, वहां पे यू विल राइट 450। टेक्सटाइल एरिया का जो कॉर्नर, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे आपका टोटल लास्ट वैल्यू बनती है, वहां पे यू विल राइट 450। उसके बाद रेस्ट फ्रॉम नॉन टेक्सटाइल एरिया, इसका मतलब हो गया हमें टोटल दिया था 1890, बिल्कुल एंड वाला टोटल देखो 1890, वो पूरा सभी एप्लीकेंट्स का है। उस 1890 में से 450 जो लोग हैं, विमेन हैं, वो टेक्सटाइल एरिया में से हैं। तो हाउ मेनी विमेन विल बी लेफ्ट इन नॉन टेक्सटाइल, तो देन यू शुड सब्ट्रैक्ट, आपको माइनस करना चाहिए 1890 में से आप 450 माइनस कर दो, 1890 माइनस 450। अब मैं वैल्यू नहीं बताऊंगी, यू शुड ऑल्सो डू सम प्रैक्टिस। जितना भी नंबर आया वो आपका आ जाएगा टोटल नॉन टेक्सटाइल एरिया का, सबसे एंड वाला टोटल। ठीक है, 1890 माइनस 450, नंबर जितना आया आई होप इट इज कमिंग आउट टू बी 1440। इतना ही आ रहा है 1440, ठीक है। वो आप लिखोगे नॉन टेक्सटाइल एरिया का जो एक्सट्रीम बिल्कुल एंड वाला कॉर्नर टोटल वाली वैल्यू है वहां पे। अच्छा, उसके बाद अब क्या दिया हुआ है, amongst the married women who belonged to textile area। अब आ जाए टेक्सटाइल एरिया है, पहले ऊपर से चेक करो टेक्सटाइल एरिया मतलब फर्स्ट वाला कॉलम, ठीक है। उसके बाद क्या बात दी हुई है, मैरिड विमेन। टेक्सटाइल के नीचे देखो मैरिड विमेन वाला कॉलम, ठीक। वहाँ क्या दिया हुआ है, 310 वर एक्सपीरियंस्ड, मतलब टेक्सटाइल एरिया उसका फर्स्ट कॉलम मैरिड विमेन, उसके बाद अपना देखो लेफ्ट साइड पे रो वाली साइड पे आपने लिखा एक्सपीरियंस्ड विमेन। ना वो नंबर कितना दिया हुआ है इन द स्टेटमेंट, 310, आपकी वेरी फर्स्ट वैल्यू 310 वो हो गई एक्सपीरियंस्ड। और साथ में क्या दिया है, एंड 60 इनएक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब उसी के नीचे वही बात चल रही है। टेक्सटाइल एरिया में मैरिड विमेन में से 310 एक्सपीरियंस है, काम करने का एक्सपीरियंस है उनको, और 60 जो लेडीज हैं, विमेन है, वो इनएक्सपीरियंस्ड है। तो अब आपका एक कॉलम पूरा हो गया, ऐड कर दीजिए दोनों को, 310 प्लस 60 कर दो वर्टिकली, तो ये आ गया आपके पास 370, ठीक है। उसके बाद अब आप देखो 450 आपका ग्रैंड टोटल बना हुआ है, ये वाले कॉल टेक्सटाइल एरिया का 450 में से नाउ यू सब्ट्रैक्ट 370, टेक्सटाइल एरिया के जो ग्रैंड टोटल 450 है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 370, यू विल बी लेफ्ट विद 80। तो 80 कौन सी हो गई, अनमैरिड विमेन का टोटल, अनमैरिड विमेन का टोटल हो गया 80, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया है नेक्स्ट लाइन में, पहले वो लाइन पढ़ लो जरा। Amongst the married women who belong to textile area, 310 were experienced and 60 inexperienced, while for the non-textile area, corresponding figures were
अब आ जाओ नॉन टेक्सटाइल एरिया वाला कॉलम, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब कि जो एक्सप्लेनेशन ऊपर दी हुई है उसी उसी ऑर्डर में, तो वो फिगर्स कौन सी हैं? पहली फिगर होगी हमारी एक्सपीरियंस्ड विमेन की, दैट इज 250। तो अब आप करेंगे नॉन टेक्सटाइल एरिया, मैरिड विमेन वाला कॉलम, उधर से रो वाली साइड से देख लो एक्सपीरियंस्ड विमेन, कितना नंबर दिया हुआ है? 250, 250, ठीक है। एंड 320, तो 320 कौन सी होगी? ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक। तो नॉन टेक्सटाइल एरिया, मैरिड विमेन वाला कॉलम, एक्सपीरियंस्ड रो के सामने यू विल राइट 250 और उसके नीचे इनएक्सपीरियंस्ड रो के सामने मैरिड विमेन वाले कॉलम में आप लिखोगे 320, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड 250 एंड 320, ये आ गया आपके पास में 0 5 और 2 7 5 570, टोटल हो गया 570, ठीक है जी। अब आ जाएं, नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा, द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड, total number of inexperienced women was 1250, टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड। अभी ये नहीं बताया कि ये इनएक्सपीरियंस विमेन जो है वो टेक्सटाइल एरिया की हैं कि नॉन टेक्सटाइल की, ये दिस इज नॉट टोल्ड येट, है ना। तो अब आप क्या करोगे, इनएक्सपीरियंस्ड रो के सामने बिल्कुल एक्सट्रीम जो आपका लास्ट टोटल वाला आपने कॉलम बनाया हुआ है, बिल्कुल एंड वाला, वहां पर आप लिखोगे 1250, बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड कॉलम टोटल वाला, इनएक्सपीरियंस्ड के सामने 1250, ठीक है। ऑफ होम 80 रिजाइडेड इन टेक्सटाइल एरिया, रिजाइडेड का मतलब यहाँ वो रहने वाला नहीं है, यहाँ पर है कि भी जिनको टेक्सटाइल एरिया में काम करने का है, उनका मतलब फील्ड ऑफ वर्क है। तो 1250 में से 80 जो है वो टेक्सटाइल एरिया की हैं इनएक्सपीरियंस्ड, तो नाउ इनएक्सपीरियंस्ड रो के सामने टेक्सटाइल एरिया में इनएक्सपीरियंस्ड के सामने वी विल राइट 80, ठीक है। तो अब नाउ वी हैव गॉट टू वैल्यूज, ग्रैंड टोटल है सब विमेन इनएक्सपीरियंस्ड का 1250, उसमें से 80 हैं टेक्सटाइल एरिया की, तो बाकी जितनी होंगी वो कौन सी हो जाएंगी? नॉन टेक्सटाइल एरिया की। तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1250 में से 80 माइनस कर दें, ये बच गया 1170। तो 1170 आप कहाँ लिखोगे? नॉन टेक्सटाइल एरिया का जो टोटल है, नॉन टेक्सटाइल एरिया के टोटल में 1170, ठीक है। उसके बाद ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विमेन 950 वर अनमैरिड, ऑफ ऑल द ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विमेन। अब आप देखो टोटल नंबर ऑफ विमेन, लास्ट वाला कॉलम एक्सट्रीम राइट कॉलम, टोटल नंबर में से 1890 में से 950 अनमैरिड, एक्सट्रीम राइट साइड वाला टोटल वाला कॉलम, उसमें अनमैरिड के नीचे राइट 950, ठीक है। अब बच गई हमारे पास मैरिड विमेन का नंबर निकालना है, तो आप माइनस कर दो, 1890 में से 950 माइनस कर दो, तो बच गई 940। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है इन दिस क्वेश्चन, सभी कॉलम्स साथ साथ ही चल रहे हैं, तो हम मतलब उसको वी कैन नॉट मेक देम सेपरेट, सभी बातें साथ साथ ही चल रही हैं, तो वी हैव टू बी केयरफुल कहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमें, ठीक है जी। तो उसके बाद ये 1890 में से 9050 यू हैव सब्ट्रैक्टेड एंड यू गॉट द नंबर ऑफ मैरिड विमेन, टोटल वाला 940। उसके बाद क्या दिया है, एंड ऑफ दीज the number of experienced women in the textile and non-textile area was 60 and 20 respectively। एक बार फिर से पढ़ लूँ, मेरी लाइन भूल गई है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विमेन 950 अनमैरिड थी, उसमें से अब जो 950 अनमैरिड है, ठीक है, उसकी बात चल रही है। अनमैरिड 950 विमेन में से क्या है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड विमेन इन टेक्सटाइल। अब आप आ जाओ टेक्सटाइल एरिया, एक्सपीरियंस्ड विमेन, और ये बात चल रही है अनमैरिड विमेन की, ठीक है। टेक्सटाइल एरिया अनमैरिड विमेन के नीचे एक्सपीरियंस्ड के सामने, यहाँ पर हमें वी शुड राइट 60, एंड नॉन टेक्सटाइल एरियाज वाज 20, मतलब टेक्सटाइल एरिया में 60 है एंड नॉन टेक्सटाइल एरिया में 20,
अब आ जाए नॉन टेक्सटाइल एरिया, अनमैरिड विमेन एक्सपीरियंस्ड के सामने 20. ठीक, नाउ यू हैव गॉट, यू हैव सब्स्टिट्यूटेड ऑल द वैल्यूज. नाउ अब आप चेक करो कहाँ पर क्या प्लस माइनस करें कि वी शुड गेट ऑल द वैल्यूज फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द टेबल. I can show the solution also, but request you to firstly do yourself, then cross check with the solution. This is the solution. जिन बच्चों को नहीं भी पता चला, don't worry, I will send the this PDF of all these questions. बाद में आप आराम से भी उसको देख के you can carefully understand. Hurry up, 5 minutes are left. हाँ जी, डन बेटे. जैस्मिन कर लिया बच्चे? जैस्मिन डन? तान्या, मान्या डन? Okay, very fine. Very right, very good. Okay. Now I give you one statement. अब ये थोड़ी सी puzzling type of statement है and I would like you to do this. हो जाएगा, ठीक है? नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है. No need to worry. Yes. I will not give its a solution now. Later on I will send in the PDF. But I again request you पहले खुद करके देखना है, फिर PDF से cross check करना है, ठीक है? I am going to speak also. This is question number 3. Just a minute. हाँ जी. There are 1440 employees in a certain company. 1440. Of all the employees, comma, of all the employees, comma, 1 in 3 is a woman. 1 in 3. 1 in 3 is a woman and 1 in 12 is a married woman. 3 में से एक जो एम्प्लॉई है वो वुमेन है और 12 में से एक एम्प्लॉई मैरिड वुमेन है. ठीक है, फुल स्टॉप. 1 in 6 of the men is a married man. 1 in 6 of the men is a married man. Tabulate this information. अभी हमें बड़ा, this statement has been given in a very twisted manner. अब आप क्विकली रफ वर्क पे आप लिख लो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. बाद में इसको टेबुलेट करना है. पहले सी की पता कैसे लगाना है कि कितने मेन है और कितने वीमेन है, क्या है. ठीक है, रफ काम में यू प्लीज नोट डाउन. पहले तो देखो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 1440. ठीक है, आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है, ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, मतलब ये 1440 में से 3 में से एक विमेन है. तो अब आप जरा कैलकुलेट करो, अगर 3 में से एक वुमेन है तो 1440 में से कितनी विमेन होंगी. प्लीज डू, ऑल दीज आर वर्किंग नोट्स फॉर योर रफ वर्क. 3 में से 1 वुमेन है तो 1440 में से कितनी विमेन होंगी. क्या फॉर्मूला होगा, 1/3. 3 में से एक 1/3 इंटू 1440, तो कितनी विमेन होगी आपके पास, 480. 480. वेरी गुड, 480. इसका मतलब हमें पता चल गया 480 विमेन होगी. अब 480 विमेन है और हमें दिया हुआ था टोटल जो एम्प्लॉइज हैं वो 1440 हैं. तो कितने मेन बचे फिर, 1440 में से ये विमेन माइनस कर दो. 1440 माइनस 480 विमेन, बाकी जो बचेंगे वो हमारे पास मेन बचेंगे. कितना आया, एनीबडी कैन टेल, कितने मेन बचेंगे. 1360. नहीं, 1440 तो टोटल एम्प्लॉइज हैं बेटे,
उसमें से विमेन अभी हमने निकाली हैं 480, तो आप 960 960 यस यस 960, 1440 में से 480 लेडीज को निकाल दो तो बाकी मेन एम्प्लॉइज बच गए ना, तो 960 हमारे पास मेन एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया था, सीधा सेकंड लाइन, ऑफ ऑल द एम्प्लॉय 1 in 3 इज ए वुमेन, ये तो हमने निकाल लिया, एंड 1 in 12 इज ए मैरिड वुमेन। 12 एम्प्लॉइज में, नहीं 40 नहीं, ध्यान से पढ़ो, मैंने भी पहले यही मिस्टेक किया था, ध्यान से देखो, ये नहीं कहा कि 1 in 12 विमेन इज ए मैरिड वुमेन, ये नहीं कहा है, दे हैव सेड 1 in 12, ये एम्प्लॉइज की बात चल रही है भाई, एम्प्लॉइज में से 12 एम्प्लॉइज में से एक मैरिड विमेन है, तो हमें करना ऐसे निकालना चाहिए कि अगर 12 एम्प्लॉइज हैं तो उसमें से मैरिड वुमेन है 1, तो अगर 40 एम्प्लॉइज हैं तो उसमें से मैरिड वुमेन कितनी, 120। यस दैट्स राइट, हूसोएवर हैज सेड, वेरी गुड। 12 में से एक मैरिड वुमेन है, तो 1440 में से कितनी मैरिड वुमेन होंगी, 1/12 इंटू 1440, ये आ गया 120।